Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we have completed rights, which is the part of Part B Political Theory, Chapter 5. So now we are going to complete Local Government, Chapter 3, Part A, Indian Constitution at Work. So then there will be only one chapter left in term-wise syllabus first term. Okay. Are you able to see the screen? Chapter 8, Local Governments. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, introduction. In a democracy, it is not sufficient to have an elected government at the center and at the state level. It is also necessary that even at the local level, there should be an elected government to look after local affairs. Democracy के अंदर इतना काफी नहीं होता कि आपने एक सरकार चुन ली सेंटर में या स्टेट लेवल पे तो उससे काम हो जाएगा। ये चीज हमने अपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ी है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बाद में हमें एक लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी स्टैब्लिश करनी पड़ी थी, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी कंट्री है और यहाँ पर ये दोनों सरकारों के बाद में दोनों लेवल पे जो है उसके बाद में पूरी तरह से चीजें नहीं हो पा रही थी, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट जो है उसका भी उन्होंने एक स्टैब्लिशमेंट किया और फिर एक लोकल गवर्नमेंट को उन्होंने नई तरीके से स्टार्ट करना शुरू करा। ठीक है। It is also necessary that even at the local level there should be an elected government to look after local affairs. ये जरूरी है कि एक लोकल गवर्नमेंट जो है लोकल लेवल पे भी स्टैब्लिश की जाए जिससे लोकल अफेयर्स जो है वो सॉर्ट आउट करे। In this chapter you will study the structure of local government in our country. इस चैप्टर के अंदर आप हमारी देश का जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में समझेंगे। You will also study the importance of the local governments and ways to give them independent powers. और साथ ही साथ आप बाकी चीजें जो है लोकल गवर्नमेंट की वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या तरीके हैं उनके काम करने के, क्या उनकी इंडिपेंडेंट पावर्स हैं, उन सब के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। After studying this chapter, you will know the importance of local government bodies, the provisions made by 73rd and 74th amendments, and the functions and the responsibility of local government bodies. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में ये जो आपके सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं उसको आप प्रॉपर्ली आंसर कर पाएंगे कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स क्या हैं, क्या प्रोविजन लाए गए थे वहां से, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की। Is it clear? If you have any problem regarding this introduction, you can ask me. No, No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Okay, moving on to this chapter, why local governments? अब local governments क्या है? There are two incidents given in this under this title. So we'll discuss the first one. Geeta Rathore belongs to Jamonia Talab Gram Panchayat, Sihor district, Madhya Pradesh. She was elected Sarpanch in 1995 from a reserved seat, but in 2000 the village people rewarded her for her admirable work by electing her again, this time from a non-reserved seat. From a housewife, Geeta has grown into a leader, displaying political farsightedness. She has harnessed the collective energy of her panchayat to renovate water tanks, build a school building, construct village roads, fight against domestic violence and atrocities against women, create environmental awareness, and encourage the afforestation and water management in her village. Panchayati Raj Update, Volume 11th, Number 3, 3rd February 2004। बेसिकली अब ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि गीता राठौर जो है वो जमोनिया तालाब ग्राम पंचायत को बिलोंग करती हैं, सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, और उनको इलेक्ट किया गया था सरपंच के तौर पर 1995 के अंदर से, और उन्होंने एक रिजर्व सीट पे ये इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद में 2000 में इनको वापस से लोगों ने रिवॉर्ड के तौर पर वापस से चुना, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था जब ये इलेक्ट हुई थी, और इस बार जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो वो नॉन रिजर्व सीट से था। अब ये एक गृहिणी थी जो बाद में जाकर के एक अच्छे लीडर की तरह निकल के आई। उन्होंने काफी ज्यादा दूरगामी जो दृष्टि होती है उसको देखते हुए इन्होंने काफी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से काफी अच्छे डेवलपमेंट्स कराए। साथ ही इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगाई जो भी पंचायत की थी, उन्होंने वाटर टैंक्स बनवाए, स्कूल बिल्डिंग बनवाई, रोड्स बनवाए। जो डोमेस्टिक वायलेंस और एट्रोसिटीज होती है वेमेन के खिलाफ, जो ह्यूमैनिटी होती है वेमेन के खिलाफ, उसके
खिलाफ भी इन्होंने एक्शन लिए। एनवायरमेंटल अवेयरनेस के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो इन्होंने एफॉरेस्टेशन को काफी इंकरेजमेंट दिया कि डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो तो होता है बेसिकली कि कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, और एफॉरेस्टेशन क्या होता है, प्लांटेशन ऑफ न्यू ट्रीज, तो वो चीज इन्होंने करवाई। फिर वाटर मैनेजमेंट जो है अपने विलेज में वो भी ठीक कराया। तो ये एक एग्जाम्पल था। देन देयर इज अ सेकंड स्टोरी. There is another story of yet another woman achiever. She was the president, a sarpanch of a Gram Panchayat of Vengai Vasal village in Tamil Nadu. In 1997, the Tamil Nadu government allotted 2 hectares of land to 71 government employees. This piece of land fell within the vicinity of this Gram Panchayat. On the instructions of higher authorities, the district collector of Kanchipuram directed the president of Gram Panchayat to pass a resolution endorsing the allotment of the said land for the purpose of already decided. The president and the Gram Panchayat refused to pass such an order and the collector issued an order to acquire the land. अब बेसिकली ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है। यहाँ पे दूसरी कहानी बताई गई है कि विमेन अचीवर की, वो भी प्रेसिडेंट यानी सरपंच थी ग्राम पंचायत की, और ये थी वेंगाई वसल विलेज तमिलनाडु की, और ये इलेक्ट हुई है 1997 के अंदर, जब वहां पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अलॉट करी थी 2 हेक्टेयर की जो जमीन थी वो 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उन्होंने दी थी। ठीक है, और ये जो लैंड था ये ग्राम पंचायत के आसपास ही था। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो थे हायर अथॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, उसके अकॉर्डिंग ये जो जमीन थी ग्राम पंचायत की वो एक रेजोल्यूशन के अंडर थी, जहां पर पहले से अलॉटमेंट हो रखा था और लैंड पर क्या काम होना था वो भी दे रखा था। प्रेसिडेंट और ग्राम पंचायत यानी कि ये सरपंच और ग्राम पंचायत जो था उन्होंने पास करने से मना कर दिया इस ऑर्डर को। कलेक्टर ने एक ऑर्डर इशूड एन ऑर्डर टू एक्वायर द लैंड, वापस से लैंड लेने के लिए। द ग्राम पंचायत फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन द मद्रास हाई कोर्ट अगेंस्ट द कलेक्टर्स एक्शन। अब यहाँ पर उन्होंने जो अचीव किया वो अपन समझेंगे ऐसे कि कलेक्टर जो है वो अपने हिसाब से चीज का इस्तेमाल करना चाह रहा था, वो भी उस जमीन का जो पहले से अलॉट की हुई थी और उस पर डिसाइडेड था क्या काम होना है। तो इन्होंने कलेक्टर के खिलाफ ही जो है एक रिट पिटीशन डाल दिया मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। The single judge bench of the High Court upheld the collector's order and ruled that there was no need to take the panchayat's consent. The panchayat appealed to the division bench against the single judge order. In its order, the division bench reversed the order of the single judge. अब यहाँ पे जब इन्होंने कोर्ट के अंदर मद्रास हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाला, रिट फाइल करी, तो वो क्या था, सिंगल जज बेंच था, यानी कि एक ही जज जो था वो बैठा था इसके लिए। तो उन्होंने कलेक्टर के फेवर में ऑर्डर दिया। तो इसको देखते हुए और पंचायत की कंसेंट के खिलाफ को मतलब पंचायत की सहमति जो है उस पर कोई अपनी सही ऑर्डर नहीं पास करा, जजमेंट सही पास नहीं करा, तो पंचायत ने क्या करा, डिवीजन बेंच जो थी उसको अपील करा। ठीक है, कि ये सिंगल जज ऑर्डर नहीं होना चाहिए। इट्स इन इट्स ऑर्डर द डिवीजन बेंच रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द सिंगल जज। और इसमें क्या हुआ, डिवीजन बेंच बैठी, उन्होंने सिंगल जज का जो ऑर्डर था उसको रिवर्स करा। द जजेस हेल्ड दैट द गवर्नमेंट ऑर्डर अमाउंटेड टू नॉट ओनली infringement of the powers of the panchayat but a gross violation of the constitutional status of the panchayat. पंचायती राज अपडेट वॉल्यूम 12 जून 2005। अब इसके अंदर जजेस जो थे उन्होंने सरकार के उसमें उन्होंने अपना ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट ऑर्डर करी थी ये जमीन, ठीक है, और अपनी पास का इस्तेमाल करते हुए पंचायत जो है उसकी पास को आप कम नहीं कर सकते, और ये अगर आप उसकी पंचायत की पास को हटा रहे हो या उसको वायलेट कर रहे हो तो इससे आप डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज मेंशन है उसको वायलेट कर रहे हो, तो ये करना गलत है। ये अपडेट हुआ है एक और 2005 के अंदर, और पहला जो था वो फेब 2004 के अंदर था। दोनों ही इंसिडेंट समझ में आए, किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. ओके, अब समझेंगे कि इसमें क्या हुआ है। Both these stories are not isolated incidents, they are representatives of a larger transformation that is taking place across India, especially after constitutional status was accorded to local government institution in 1993। ये दोनों ही स्टोरीज जो हैं ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो लाया गया था उसके अंदर। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया इंडिया के अंदर, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के अंदर। जो लोकल गवर्नमेंट को लेकर के जो इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए गए थे 1993 के अंदर, उसमें थोड़ा सा और अमेंडमेंट लाया गया जस्ट टू इम्प्रूव द
durability of that institution. लोकल गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? सरकार होती है विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल. अब लोकल सरकार गवर्नमेंट जो है वो लोगों के, जो आम जनता है उसके काफी नजदीक होती है. लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट गवर्नमेंट दैट इन्वॉल्व्स द डे टू डे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन. अब लोकल गवर्नमेंट जो है बेसिकली वो क्या करती है? जो रोजमर्रा की दिक्कतें आ रही हैं जिंदगी के अंदर वो इससे डील करती है. Local government believes that local knowledge and local interests are essential ingredients for democratic decision making. Local government जो उसका मानना होता है कि local knowledge और local interest जो है वो सबसे important ingredients है किसी भी अच्छे से, अगर आपको democratic decision लेना है तो उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि उनके इंटरेस्ट से काम हो, उनकी समझ से काम हो. They are also necessary for efficient and people friendly administration. और ये जरूरी है कि यहाँ पे अच्छे तरीके से काम हो और एडमिनिस्ट्रेशन जो हो वो पीपल फ्रेंडली हो, ऐसे कि यहाँ पे लोग बाग इजीली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें. एनवायरमेंट इस तरह का होना चाहिए कि उनकी चीजों को सोल्यूशन मिले, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिले, ना कि उनकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाए. तो दैट इज व्हाट वी कॉल पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन. The advantage of local government is that it is so near the people. और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लोगों के बहुत नजदीक होती है. It is convenient for the people to approach the local government for solving their problems both quickly and with minimum cost. और ये लोगों के लिए काफी convenient होता है कि लोग बाग जाकर के उनसे अपनी गुहार लगा सकें, प्रॉब्लम को बता सकें और उनकी प्रॉब्लम्स आसानी से फटाफट सॉल्व हो जाए और मिनिमम कॉस्ट लगे उसकी. The story of Geeta Rathore, we noticed that she was able to bring about a significant change in Jamunia Tala because of her proactive role as Sarpanch of the Gram Panchayat. अब गीता राठौर के केस में देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट चेंज ला पाई जमुनिया तालाब में, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी सरपंच के तौर पे ग्राम पंचायत में. Vengai Vasal village is able to still remain its lands and the right to decide what to do with it because of the relentless efforts of its ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स. अब दूसरा जो तमिलनाडु का केस था उसमें भी वो लोग इसलिए अपनी जमीन बचा पाए और उस जमीन पे क्या काम करना है वो डिसाइड कर पाए, क्योंकि वो भी बिना रुके इस चीज पर काम कर रहे थे. वो जितने भी ग्राम सभा के मेंबर्स थे वो और उनकी जो सरपंच थी वो. So the local governments can be very effective in protecting the local interest of the people. इसीलिए जो local government होती है वो बहुत ही effective तरीके से अपने लोगों की जो भी इच्छाएं, जो भी उनके इंटरेस्ट है उनको safeguard कर पाती है. If you have any problem regarding this paragraph and the above paragraph, you can ask me. Ma'am, can you please explain the above paragraph because your voice was not clear at this time. This one, both these stories are not isolated incidents. Yes, ma'am. Okay. Both these stories are not isolated incidents. They are representative of a larger transformation that is taking place across India, especially after constitutional status was accorded to local government institutions in 1993. अब ये दोनों ही जो यहाँ पे स्टोरीज दे रखी हैं ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, यानी कि ये ऐसे नहीं है कि लोग बाग जानते नहीं हो इनके बारे में, ऐसे किस्से नहीं है जिनको लोग समझे नहीं. ठीक है, ये क्या है? ये चीज जो है रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को. ठीक है, जो काम कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ये लोकल गवर्नमेंट है वो कर पाए, हम लोग उसको चेंज कर पाए. ठीक है, मतलब जो 1993 के अंदर लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सेट किया गया है उसको अच्छे से हम प्रॉपरली फॉलो अप कर पाए, उसकी वजह से जो चीज लागू की गई है उसके तहत हम बदलाव ला सके, वो चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके एग्जाम्पल सेट हो रखे हैं. तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है दोनों इंसिडेंट्स. समझ आया? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज हम इतना ही करेंगे इस चैप्टर के अंदर. विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन टुमारोज क्लास एंड प्लीज conjure up your problems related to this chapter. We will discuss all of your problems in tomorrow's class. Now we are running out of time, so I'm going to send you a link for your next class.